اوڑی والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ انجینئر صاحب بھی جو ہے آنے والے دنوں میں آ رہے ہیں، ریلیز ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ لوگ ان کی ہر چیز کو سمجھ گئے ہیں۔ یہ جو ہمارے پرانے لیڈر اتنے سالوں سے ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو دکھاؤں کتنے روڈ ہیں، کہاں پہ پاور کی پریشانی ہے، کہاں پہ باقی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایک بار جو ہے آپ کو ان لوگوں کو دکھانا چاہیے کہ اگر اتنے سال یہ یہاں پہ حکومت کر چکے ہیں تو پھر یہ سب چیزیں ابھی تک کیوں پینڈنگ ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارا آفس بھی یہاں چندن واڑی میں ہے، اور باقی جو بھی سیاسی پارٹی ہیں ان کے آفیسز بھی یہاں پہ چندن واڑی میں ہیں۔ یہ ایک بار آئیں اپر چندن واڑی میں دیکھیں، ابھی تک اس ایریے میں جو بالکل سمجھو ہمارے بالکل یہیں پہ ساتھ میں جہاں پہ ہم سبھی لوگ رہ رہے ہیں، وہاں پہ ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ باقی لوگوں کی ڈیولپمنٹ کیا کریں گے، یا باقی ایریوں کی ڈیولپمنٹ کیا کریں گے؟ ان کو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ صرف اسی دن یاد آتی ہے جس دن ان کو ووٹ کے لیے جانا ہوتا ہے۔ آپ خود جانتے ہیں، ہر کوئی یہ چیز جانتا ہے کہ پاور پروجیکٹ جو ہے ہماری اڑی کے اندر کتنی جنریشن ہے پاور کی، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اگر یہ سیاستدان چاہتے تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، وہ اس پاور کے لیے لڑ سکتے تھے، وہ اس کو روک سکتے تھے، تاکہ کم سے کم اڑی کو بھی جو ہے 24 گھنٹے جو ہے ہمیں بجلی ہمیں مل سکتا تھا، یہ پاور مل سکتا تھا۔ اور اوپر سے کیا ہوا، ایک تو ہمیں پاور بھی نہیں ملتا ہے، اور اوپر سے کیا ہے کہ آپ جو بجلی بلز دیکھیں گے وہ بجلی بلز اتنی زیادہ ہیں کہ اتنے غریب لوگ جو ہیں، ہمارے پہاڑوں پہ رہنے والے جو لوگ اتنے غریب ہیں، وہ کہاں سے بھر پائیں گے یہ بجلی فیس۔ میں چاہتا ہوں کہ جب ہم آئے تو انشاءاللہ عورتوں کے لیے ایک ہاسپٹل جو ہے وہ خصوصاً صرف عورتوں کے لیے اڑی میں بنے۔ آپ دیکھیں گے یہاں پہ ہمارے یہاں ایک ایریا ہے ہمارا بگنا اسلام آباد، وہاں پہ ہمارا جو ہے وہاں پہ جپسن نکلتا تھا، لیکن اس پہ بھی اب کچھ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنا قبضہ جما رہی ہیں۔ وہ ایک چیز تھی جو کم سے کم تھوڑا وہاں کے لوگوں کو بوسٹ کرتی، لیکن بدقسمتی کیا ہے یہ ہے کہ اس پہ بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنا قبضہ کر رہی ہیں۔ اور آپ انتہا یہ دیکھیں کہ وہاں کے لوگوں کے لیے روڈ نہیں ہے، وہ اپنی گاڑیوں میں وہاں جا نہیں پاتے ہیں، ان کے لیے روڈ اویلیبل نہیں ہے وہاں پہ، ان کا پانی وہاں پہ جو ہے وہ گندا پانی پی رہے ہیں، کتنی ساری پرابلمس ہیں ان لوگوں کی۔ آپ ایک بار جا کے وہاں پہ دیکھیں، آپ کو یہ چیز دعوے سے کہوں گا کہ جو ڈیولپمنٹ جموں کشمیر میں انجینئر رشید صاحب کریں گے وہ یہ لوگ آج تک نہ کر پائے ہیں، نہ کر پائیں گے۔ اپنے جو بھی ان کے کینڈیڈیٹس ہیں جن کو مینڈیٹ ملا ہے ان کی لسٹ نکالی، اس میں آپ دیکھیں تقریباً 6 ایسے کینڈیڈیٹ ملیں گے جن کے والد صاحب آلریڈی جو ہے وہ منسٹرز رہ چکے ہیں، یعنی کہ منسٹروں نے اپنے بیٹوں کو ہی مینڈیٹ دلایا ہے۔ شفیع صاحب ہیں، ان کے بیٹے سجاد صاحب ہیں، سب نے جو ہے ان کی جو شخصیتی راج جو ہے نا، بس یہی چل رہا ہے یہاں پہ، اسی چیز کو لے کے جو ہے آگے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک چیز کروں، اگر یہ لوگ کیا یہاں ہماری اڑی میں کوئی بھی نیشنل کانفرنس میں کوئی بھی ایسا جوان نہیں تھا جو آگے رہبری کر سکتا تھا، ان کے بنا کوئی ایسا اچھا بندہ نہیں تھا کہ جو نیشنل کانفرنس کو یہاں سے لیڈ کر سکتا تھا؟ کیوں؟ اڑی کی لوگ جو ہیں اب پرانے لوگوں سے تنگ آ چکے ہیں، اور ہر ایک سمجھ رہا ہے کہ ان کی اچھی قیادت کون کر سکتا ہے۔ اور آج کے دنوں میں اگر دیکھیں تو ایک سچا انسان جو ہے وہ انجینئر رشید ہی ہے، اور یہ اڑی والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ انجینئر صاحب بھی جو ہے آنے والے دنوں میں آ رہے ہیں، ریلیز ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جو قیادت جو ہے انجینئر رشید صاحب جموں کشمیر کی کریں گے وہ آج تک نہ کسی سیاستدان نے کی ہوگی، نہ کوئی کر پائے گا۔ وہ ایک سچا انسان ہے، اور وہ انسان اب جلد ہی جلد آ رہا ہے انشاءاللہ اڑی کے اندر۔ اور میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ لوگ ان کی ہر چیز کو سمجھ گئے ہیں۔ یہ جو ہمارے پرانے لیڈر اتنے سالوں سے ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو دکھاؤں کتنے روڈ ہیں، کہاں پہ پاور کی پریشانی ہے، کہاں پہ باقی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایک بار جو ہے آپ کو ان لوگوں کو دکھانا چاہیے کہ اگر اتنے سال یہ یہاں پہ حکومت کر چکے ہیں تو پھر یہ سب چیزیں ابھی تک کیوں پینڈنگ ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پہ ہمارا آفس بھی یہاں چندن واڑی میں ہے، اور باقی جو بھی سیاسی پارٹی ہیں ان کے آفیسز بھی یہاں پہ چندن واڑی میں ہیں۔ یہ ایک بار آئیں اپر چندن واڑی میں دیکھیں، ابھی تک اس ایریے میں جو بالکل سمجھو ہمارے بالکل یہیں پہ ساتھ میں جہاں پہ ہم سبھی لوگ رہ رہے ہیں، وہاں پہ ابھی تک کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ باقی لوگوں کی ڈیولپمنٹ کیا کریں گے، یا باقی ایریوں کی ڈیولپمنٹ کیا کریں گے؟ ان کو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ صرف اسی دن یاد آتی ہے جس دن ان کو ووٹ کے لیے جانا ہوتا ہے۔ یہ
अलग अलग साजिशें करके जो है लोगों को कोशिश करते हैं बेवकूफ़ बनाने की, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो नौजवान है वो समझ चुका है कि हमने कहाँ की ओर जाना है, हमने क्या करना है, हमारी उड़ी जो है वो आगे कैसे जा सकती है और हम लोग आगे कैसे जा सकते हैं। आप खुद जानते हैं, हर कोई ये चीज़ जानता है कि पावर प्रोजेक्ट जो है हमारी उड़ी के अंदर कितनी जनरेशन है पावर की, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि अगर ये सियासतदान चाहते तो ये कोई उतना बड़ा मसला नहीं था, वो इस पावर के लिए लड़ सकते थे, वो इसको रोक सकते थे, ताकि कम से कम उड़ी को भी जो है 24 घंटे जो है हमें बिजली हमें मिल सकता था, ये पावर मिल सकता था। और ऊपर से क्या हुआ, एक तो हमें पावर भी नहीं मिलता है, और ऊपर से क्या है कि आप जो बिजली बिल्स देखेंगे वो बिजली बिल्स इतनी ज़्यादा हैं कि इतने गरीब लोग जो है, हमारे पहाड़ों पर रहने वाले जो लोग इतने गरीब हैं, वो कहाँ से भर पाएंगे ये बिजली फीस। ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हमारे लोगों के साथ है। लेकिन मैं उन लोगों से अपील करता हूँ कि वो इन चीज़ों को देखें। मैं ज़्यादा बड़े बुज़ुर्गों से ये अपील करता हूँ, क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वही सिर्फ इस टाइम इन पार्टियों के साथ जा रहे हैं। नौजवानों को तो पता है, कुछ नौजवान जो हैं वो अगर वहाँ पे होंगे, लेकिन वो भी जल्द से जल्द इंशाल्लाह अवामी इत्तेहाद पार्टी के साथ वापस आ जाएंगे। और अल्लाह के फजल व करम से आप देखें कि आज हमारी पार्टी में बहुत सारी जॉइनिंग्स जो हैं वो हो रही हैं, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कितनी सारी जॉइनिंग्स जो हैं उड़ी में अवामी इत्तेहाद पार्टी के साथ होंगी। क्योंकि हर एक को पता है इंजीनियर रशीद की सच्चाई, हर एक को पता है इंजीनियर रशीद के काम, उसने वो सब बयां हैं, वो सब जानते हैं। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग भी जो हैं वो कोशिश करें, जितने भी लोग हैं वो कोशिश करें AIP के साथ जुड़ने की। और इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंजीनियर रशीद साहब जो है 4 सितंबर में हम सब लोगों के बीच में होंगे, और वो दिन हमारी जम्मू कश्मीर के लिए एक सबसे बड़ा दिन होगा इंशाल्लाह। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आज हर कोई पार्टी अपने मैनिफेस्टो लेके आती है कि एक ऐसी चीज़ लाती है कि पावर, हम आपको 200 यूनिट्स फ्री देंगे, कोई 300 यूनिट्स फ्री देगा। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जब इनके पास पूरा पावर था उस टाइम तो ये कोई पावर वगैरह हमें कुछ इसके लिए कर नहीं पाए, लेकिन आज जो है जब वोट लेने का टाइम है तो आज ये 200 यूनिट्स फ्री करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताऊं उड़ी के बारे में, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह हम आए तो हम ज़रूर करेंगे। मैं आपके सामने कुछ दिनों के बाद अपना पूरा जो है उड़ी का जो मैनिफेस्टो है वो आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपसे बताना ज़रूरी चाहूँगा। हमारी जो माएँ बहनें हैं, आप देखें कि इन लोगों ने इतने साल यहाँ पे हुकूमत करके उन माँ बहनों के लिए एक छोटा हॉस्पिटल उड़ी के अंदर नहीं बना पाए। जो माँ बहनें हमारी हैं उनको भी आज अगर कोई इमरजेंसी हो और उनको जो है बारामूला जाना पड़ता है, उनके लिए कोई अलग से इंतज़ाम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जब हम आए तो इंशाल्लाह औरतों के लिए एक हॉस्पिटल जो है वो खुसूसन सिर्फ औरतों के लिए उड़ी में बने। और जो लोग दूर दराज एरियों से, पहाड़ों से आते हैं यहाँ पे उड़ी में, जिनके बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनके पास पैसे नहीं है, दिन के 200-300 उनका खर्चा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि हम एक उड़ी के अंदर या बोनियार के अंदर कुछ ऐसे हॉस्टल्स बनाएं जहाँ पे उन बच्चों का जो है रिहाइश हो, जहाँ पे वो रह सकें। इंशाल्लाह जितनी भी आप देखेंगे पहाड़ों पे रहने वाले लोग हैं, हर एक के पास ज़मीन है। अगर उनके पास पैसा नहीं है, गरीबी है, लेकिन ज़मीन है, लेकिन उनको ये चीज़ पता नहीं कि वो सिर्फ सोचते हैं कि ज़मीन से सिर्फ घास ही निकलता है, बाकी कुछ नहीं। आज तक इन सियासतदानों ने कभी उनको इस चीज़ के बारे में एजुकेट नहीं किया कि वो अपनी टीमें बेच के उनको थोड़ा सा वहाँ पे उनका सॉइल टेस्टिंग करके देखते कि इस ज़मीन से कुछ और चीज़ें भी निकल सकती हैं, उग सकती हैं, जिनसे हमारी जो है इकनॉमिकली हम थोड़ा ग्रो हों। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं जो आने वाले वक्त में मैं आपके सामने रखूँगा। इंशाल्लाह इस उड़ी को अब चेंज चाहिए और हम वो चेंज ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे यहाँ पे हमारे यहाँ एक एरिया है हमारा बगना इस्लामाबाद, वहाँ पे हमारा जो है वहाँ पे जिप्सन निकलता था, लेकिन उस पे भी अब कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपना कब्ज़ा जमा रही हैं। वो एक चीज़ थी जो कम से कम थोड़ा वहाँ के लोगों को बूस्ट करती, लेकिन बदकिस्मती के है
ये है कि उस पर भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना कब्ज़ा कर रही हैं। और आप इंतहा ये देखें कि वहाँ के लोगों के लिए रोड नहीं है, वो अपनी गाड़ियों में वहाँ जा नहीं पाते हैं, उनके लिए रोड अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, उनका पानी वहाँ पे जो है वो गंदा पानी पी रहे हैं। कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं उन लोगों की, आप एक बार जाके वहाँ पे देखें, बहुत परेशानी के आलम में वो लोग हैं। इसी तरीके से आप अभी बहुत दावा करते हैं हमारे लीडर्स कि हमने रोड बनाए हैं, हमने हर जगह रोड बनाए। मैं उनको छोटी सी कुछ एग्जांपलें देता हूं कि अगर उन्होंने हर जगह रोड बनाया है तो वो बेमियार मोड़ियाँ जाएं, वहाँ का रोड देखें, वो पहाड़न जाएं, वहाँ का रोड देखें, वो सुल्तान डकी ऊपर जाएं, वहाँ का ये देखें, वहाँ ये अपना बोनियार नाले में लड़ी जाएं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का जो है रास्ता जो है, वहाँ उन लोगों के लिए आज तक 60 साल में रोड नहीं बन पाया है। वो लोग, मैं कल एक वीडियो देख रहा था, वो लोग जो है ट्रांसफार्मर ले जा रहे थे, कंधे पे लेके जा रहे थे, तकरीबन कोई 30-40 लोग थे, उनके पास रोड नहीं है, वो अपना ट्रांसफार्मर जो है वो किसी गाड़ी या किसी में लेके जो है वहाँ तक जाते। ये डेवलपमेंट है इन लोगों की, ये डेवलपमेंट की है इन्होंने आज तक उड़ी में। सब लोग समझदार हैं, सब समझते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद बाहर अभी आना नहीं चाहते, लेकिन आएंगे ज़रूर आएंगे। मैं आपको ये चीज़ दावे से कहूँगा कि जो डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में इंजीनियर रशीद साहब करेंगे, वो ये लोग आज तक न कर पाए हैं, न कर पाएंगे। एक और ज़रूरी चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपने अभी लिस्ट देखी होगी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपनी लिस्ट निकाली अपने मैंडेट्स की, जो भी उनके कैंडिडेट्स हैं, जिनको मैंडेट मिला है, उनकी लिस्ट निकाली। उसमें आप देखें तकरीबन 6 ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे जिनके वालिद साहब ऑलरेडी जो है वो मिनिस्टर्स रह चुके हैं, यानी कि मिनिस्टरों ने अपने बेटों को ही मैंडेट दिलाया है। आप देखें सागर साहब हैं, उनके बेटे सलमान सागर हैं, मियाँ अल्ताफ़ साहब हैं, उनके बेटे महर अली वो हैं। आप देखें अकबर लोन साहब हैं, उनके बेटे हिलाल साहब हैं, शफ़ी साहब हैं, उनके बेटे सजाद साहब हैं। सब ने जो है इनकी ये जो शख्सियती राज जो है ना, बस यही चल रहा है यहाँ पे, इसी चीज़ को लेके जो है आगे जा रहे हैं। मैं आपसे एक चीज़ कहूँ, अगर ये लोग, क्या यहाँ हमारी उड़ी में कोई भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई भी ऐसा जवान नहीं था जो आगे रहबरी कर सकता था? इनके बिना कोई ऐसा अच्छा बंदा नहीं था कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ से लीड कर सकता था? क्यों, क्या ऐसा नहीं है? हमारी उड़ी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो आगे जाना चाहते हैं, लेकिन उनको रोका जा रहा है। मैं चाहता हूं कि ऐसे जवान उठें और सियासत में आएं, क्योंकि जितने लोग सियासत में आएंगे उतना भला हमारे लोगों का होगा, उतना भला हमारे इन गरीब आवाम का होगा। आप ये चीज़ अभी आने वाले दिनों में देखेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप उड़ी में अवामी इत्तेहाद पार्टी को आने वाले कुछ दिनों में इंशाल्लाह नंबर 1 पे देखेंगे, क्योंकि हमारे जो लोग, हमारे जो जवान 30,000 वोट, 28,500 तो हमें जो है आपने देखे ऑन रिकॉर्ड वो पड़े हुए हैं, 28,500 वोट जो हैं वो हमारे अभी उड़ी में हैं इंशाल्लाह। और वो 28,500 वोट हमारे फिर से आएंगे। ये मैं आपको जो है कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ, अभी तो आपको ये ख्वाब लग रहा होगा बाकी लोगों को, लेकिन आने वाले दिनों में आप ये चीज़ खुद देख लेंगे कि हो सकता है उससे भी ज़्यादा वोट जो है वो अवामी इत्तेहाद पार्टी उड़ी से ले इंशाअल्लाह। मैं अपने उड़ी की आवाम के साथ अपना नंबर जो है, मेरा पर्सनल नंबर है, वो शेयर करना चाहूँगा। वो सारे आप लिखें, जो भी अवामी इत्तेहाद पार्टी के साथ जुड़ना चाहे वो उस नंबर पे कॉल करे, और किसी का कोई भी मसले हों, मसाइल हों, वो आएँ हमारे पास ऑफ़िस पे। हमारा ऑफ़िस चंदनवाड़ी में है अवामी इत्तेहाद पार्टी का, और ये नंबर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये नंबर आप लिखें, कोई भी चीज़ हो तो मुझे हमेशा कभी भी किसी भी टाइम आप फ़ोन करके याद कर सकते हैं। 9596 66 66 33। एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, 9596 66 66 33। इस नंबर पे आप कभी भी किसी भी टाइम पे मुझे कॉल कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, मैं हमेशा इंशाल्लाह पेश रहूँगा। और जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं,
حالانکہ اللہ کا کرم ہے کہ دن بدن ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ جڑ رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایسے چہرے ہوں گے جن سے باقی ساری پارٹیوں کو جھٹکا لگنے والا ہے. یہ کچھ دن میں آپ دیکھیں گے. لیکن باقی جو لوگ ہیں، جو بھی لوگ آنا چاہتے ہیں وہ آئیں، اور یہ جو نمبر میرا ہے جو میں نے دیا ہے، اس نمبر پہ کال کریں اور وہ ہماری پارٹی کو جوائن کریں.